Hello everyone, today we start a chapter of geography, chapter number 3, natural resources, natural vegetation and wildlife. So basically in this chapter we are going to learn about the natural vegetation, wildlife, distribution of natural vegetation, forest, grassland, desert, tundra vegetation, shrubs, conservation of natural vegetation, distribution of wildlife and conservation of wildlife. So firstly the question is, what is natural vegetation? Natural vegetation क्या है? Natural vegetation refers to the plant community which has grown naturally without human aid. They have been left undisturbed by humans for a long time. Thus it cultivated crops and fruits. So ये एक प्लांट की ऐसी कम्युनिटी है जो खुद नेचुरली ग्रो हुई है और ये प्लांट्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमन से दूर रहे हैं. सो प्लांट्स एंड एनिमल्स दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere, atmosphere that was called biosphere. जो हमारे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है ये एग्जिस्ट करती है नैरो जोन में जो कि कांटेक्ट करते हैं एक दूसरे से बिटवीन लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर. इन तीनों को क्या कहा जाता है? बायोस्फेयर. और ये इन दिस लिविंग थिंग्स, ये जो लिविंग थिंग्स है ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर और ये सर्वाइवल करती हैं. तो इस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को हम कहते हैं इकोसिस्टम. सो इन दिस लिविंग थिंग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर सर्वाइवल. दीज लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फौना. Flora refers to the plant species and fauna refers to the animal species. So wildlife includes what? Now what is wildlife? Wildlife क्या includes करते हैं? Wildlife includes animals, birds, insects as well as the aquatic life forms. Wildlife में animals, insects, birds ये सब हमें क्या provide कराते हैं? They provide us something to humans. So they provide us milk, meat, hide and wool. For example, let us we take an example of insect like bees. What bees are giving us? What bees are providers? Bees provide us honey. As we know that कि bees जो होती हैं वो हमें honey provide करती हैं and it helps in the pollination of flowers and it have an important role to play एज डीकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम. और ये हमारे इकोसिस्टम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स का, पॉलिनेशन का जो डीकम्पोज करता है हमारे इकोसिस्टम को. सो एनिमल्स आर बिग और स्मॉल. बेसिकली चाहे एनिमल्स बड़े हों छोटे हों, दे ऑल आर इंटीग्रल टू ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम. वो क्या करते हैं? हमेशा बैलेंस करते हैं हमारा इकोसिस्टम. चाहे एनिमल्स बड़े हों, चाहे फॉर एग्जांपल इंसेक्ट इज़ एन स्मॉल एनिमल, तो वो भी हमें हनी दे रहा है. एंड इफ़ वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ बिग एनिमल, सो फॉर एग्जाम्पल द मिल्क एंड मीट. सो दे ऑल आर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम. नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ natural vegetation. What is distribution of natural vegetation? Basically plants needs air and water, sunlight and nutrients to grow it and reproduce. क्या होता है कि हमारे प्लांट्स को नीड ही होती है एयर और वाटर की, सनलाइट की, जिससे कि हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स ग्रो होते हैं और रिप्रोड्यूस होते हैं. एंड द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टू मेजर फैक्टर्स. The two important factors of our natural vegetation that depends upon the temperature and moisture. These two sources differs from place to place. We get to see a large variety of flora and fauna on our planet. So क्या होता है? बेसिकली ये दो sources differs करती हैं from place to place. ये क्या करती हैं कि हर एक place to place जाती हैं जहाँ से हमें large variety मिलती है flora and fauna की. मीन्स फ्लोरा एंड फोना मीन्स क्या हमें प्लांट स्पीशीज़ और एनिमल स्पीशीज़ ये हमारे प्लैनेट पे बेसिकली है.
So basically natural vegetation classified into forest, grassland and shrubs. So first is forest. Forests grow where temperature and rainfall are plentifully support a tree cover, and it refers to in the regions where rainfall is very heavy. So basically हमारे फॉरेस्ट का जो टेम्परेचर है वो किस रीजन में पाया जाता है जहाँ पे रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत वेरी हैवी, बहुत ही ज़्यादा हैवी होती है, जिससे कि हमारे ट्रीज आर लश ग्रीन एंड डेंस. सो दे वर क्रिएटेड द tropical evergreen forest, like the dense forest were created. So the growth of vegetation depends primarily on the temperature and moisturizer. So forest in that areas heavy rainfall, first important thing in forest, in that type of forest heavy rainfall is there, so that they will create the dense forest if the water supply is more and the huge trees may thrive. The forests are thus associated with the areas having abundant water supply. Abundant means सबसे ज़्यादा जहाँ water supply होती है. Then forest of the tropical regions, forest of the temperate season, and forest of the taiga region. In this type of region, this heavy and dense forests are there. After that, grassland. Grassland are made up of from the stunt trees and grasses. They are found in the moderate rainfall areas. 1/4 of the earth's surface is covered by the grasslands. Grasslands are found on every continent except Antarctica. They make up the most of Africa and Asia. There are several types of grasslands and each one has its own name. Prairies, steppes, savans, etc. all grasslands. So basically grassland as the amount of moisture decreases. ग्रासलैंड क्या होता है जहाँ पे मॉइस्चराइज़र डिक्रीजेज होता है द साइज़ ऑफ ट्रीज़. जब मॉइस्चराइज़र डिक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे ट्रीज़ का साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होने लगेंगे. उनकी ट्रीज़ की हाइट क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी. देयर डेंसिटी रिड्यूसेस. जब मॉइस्चर डिक्रीज होगा तभी उसकी डेंसिटी भी रिड्यूस हो जाएगी. शॉर्ट स्टंट ट्रीज, इट मीन्स दैट स्टंट ट्रीज मतलब शॉर्ट हाइट उनकी कम होती है. एंड द ग्रासेस ग्रोन इन द रीजन्स, और जिस रीजन्स में ग्रासेस ग्रो होती हैं, द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल ऑफ फॉर्मिंग. क्या होता है मॉडरेट मीन्स जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मीडियम रेनफॉल होती है. मीडियम रेनफॉल फॉर एग्जांपल द राजस्थान, इन दैट एरिया इन सम टाइप ऑफ एरिया वहाँ क्या होता है कि सावन में बहुत ही मीडियम, बहुत ही मॉडरेट रेनफॉल होती है जिससे कि ग्रासलैंड्स ग्रो होती हैं. And next is shrubs. In dry region of the world, hot and cold desert, shrubs and bushes are found. These have spines and other adaptive features to adapt themselves to the environment. The vegetation cover is scarce here because of a scanty rain and scoring heat and freezing cold condition. So, shrubs क्या होते हैं? Thorny shrubs. Thorny shrubs are grown in dry trees of low rainfall. अब हमारे ग्रासलैंड क्यों होते थे? ग्रासलैंड बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट रेनफॉल में ग्रो होते थे, मीन्स बहुत ज़्यादा मीडियम रेनफॉल होती है. और शब्स कहाँ ग्रो होते हैं? जहाँ पे बिल्कुल लो रेनफॉल मीन्स ना के बराबर बारिश होती है, तो वहाँ पे जो प्लांट्स ग्रो होते हैं वो थोड़े कांटे वाले प्लांट्स होते हैं. कांटे वाले मीन्स द कैक्टस इन राजस्थान, वहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल कम होती है. सो इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स. ऐसे एरियाज़ में जो प्लांट्स की डीप रूट्स होती है वो बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर उसकी जो रूट्स होती हैं वो स्प्रेड आउट होती रहती हैं. एंड देयर लीव्स विद थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन. और जो उनकी लीव्स होती है वो थोड़ी थोड़ी कांटेदार होती हैं, मीन्स नॉर्मली जो एक प्लांट्स होता है उससे वो थोड़ी डिफरेंट होती है इन एरियाज़ में. So transpiration is the evaporation of plants from leaves, tiny pores known as stomata. Transpiration क्या होता है? जो हमारी लीव्स पे जो हल्की ड्रॉपलेट्स होती हैं वाटर की, तो वहाँ की जो लीव्स होती हैं वहाँ पे थोड़ा थॉर्नी शब्स पाई जाती हैं. एंड अदर इज
Tundra vegetation. Tundra vegetation is found in the North Pole, high latitudes of the northern hemisphere, especially in the Europe, Asia and North America, as also at high altitudes in mountain. Only mosses and lichens and very small shrubs are found in these extremely cold region, and that too only in summers when the snow melts. This seasonal plant growth covers the ground for a few months. These are called meadows. So tundra region basically, tundra vegetation is found in the cold polar region and it comprises the mosses and the lichens. Mosses and lichens means जहाँ पे काई होती है. So natural vegetation depends upon टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. बेसिकली ये सारे जो वेजिटेशन है हमारी नेचुरल वेजिटेशन, वो बेसिकली डिपेंड्स है टेम्परेचर एंड मॉइस्चर पे. नाउ द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ. Plants give shelter to animals. Together, they maintain the ecosystem. Changes of climate and humans' interference causes the loss of natural vegetation. So basically, forests are our wealth only. So plants gives our shelter to animals. Together, they maintain ecosystem. So that changes of climate and human interference can cause the loss of natural vegetation like deforestation. The best example of deforestation. अगर डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़. अगर हमारे यहाँ ट्रीज़ ही नहीं होंगे तो एनिमल्स को शेल्टर कैसे मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन अपनी वेल्थ के लिए ट्रीज़ वगैरह तो कट कर लेते हैं, बट ऐसे ही जब सारी ट्रीज़ कट हो जाएंगे तो दे डिक्रीज, रेनफॉल भी डिक्रीज होने लगी, इंक्रीज सरफेस रन ऑफ, सॉइल इरोजन एंड डिसर्टिफिकेशन, लेस अंडरग्राउंड सरफेस, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स का सो ह्यूमन्स क्या करते हैं, दे आर हैविंग द फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मैनी मोर थिंग्स आर देयर. सो ह्यूमन वो ईट कर सकते हैं, बट बेसिकली जो एनिमल्स हैं उनकी लाइफ बेस करती है ट्रीज़ पर, फ्रूट्स पर, प्लांट्स पर. अगर यही सब काट लिए जाएंगे तो एनिमल्स के लिए ना ही कोई शेल्टर होगा, ना ही कोई फूड सिस्टम होगा. सो देयर आर द सम वेज टू कंजर्व फॉरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, एफॉरेस्टेशन, discouraging the practice of shifting cultivation, controlling deforestation, protecting existing forest. अब जितना कट चुका है, जितना फॉरेस्ट कट चुके हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, अब बस हम कंट्रोल कर सकते हैं डिफॉरेस्टेशन को. क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग जनरल पब्लिक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. और जिन लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं पता है फॉरेस्ट की, कि वो एनिमल्स के लिए कितना ही लॉस करता है. सो वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल्स. हमें स्टैंड लेना चाहिए कि there is if we create afforestation, then the enabling communities in conservation of forests by providing them training and skills. So last, distribution of wildlife. Wildlife is a significant part of our ecosystem. It refers to a variety of life forms like birds, fish, animals which lives in a natural habitat. अब distribution of wildlife में क्या है, देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट पार्ट. एक हमारा पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट पार्ट है हमारे इकोसिस्टम के लिए. ये रिफर्स करता है लाइफ फॉर्म्स, जैसे लाइफ फॉर्म्स की, बर्ड्स की, फिश की, एनिमल्स की. सो दिस दे लिव इन द नेचुरल हैबिटेट. दे आर द नेचुरल थिंग्स. सो इट लिव्स इन द नेचुरल हैबिटेट. द टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन डिपेंड्स अपॉन द नेचुरल वेजिटेशन. Habitats, forest and grassland deserts provide shelter, space for normal growth and movement, food and water, breeding place of raising young ones. So animals are migrate from one place to another. Many animals are hunting. So the greatest variety of wildlife is found in the tropical rainforest. So सबसे बड़ी जो हमारी animals की वैरायटी है वाइल्ड लाइफ की, तो वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज़्यादा मोस्टली पाए जाते हैं. सो ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट. फॉर एग्जांपल, द टाइगर, द लेपर्ड इज़ वेरी एक्सटिंक्ट नाउ.
it is on the verge of extinction only. So the conservation of wildlife. Due to human interference, many species of wildlife have to become vulnerable or endangered. क्या होता है कि हमारी ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, कुछ ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से बहुत सारी स्पीशीज़ हैं वाइल्ड लाइफ की जो बहुत कम हो गई हैं। जो पीपल हंट करते हैं, उन्हें मार देते हैं, शूट करते हैं, तो मैनी ऑफ आर द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में आ गया है, एक्सटिंक्शन में आ गया है। द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कैरिड आउट बाई ह्यूमन बींग्स कॉज डिफॉरेस्टेशन, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन बींग्स इट कॉज द डिफॉरेस्टेशन, द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। इफ़ एनिमल्स के लिए सिर्फ क्या है, एक पेड़ पौधे ही तो हैं, ना ही हम फॉरेस्ट में उन्हें रोज़ फूड गिव करने जाते हैं, कुछ नहीं देते, सिर्फ वो उनकी जो लाइफ बेस है सिर्फ वाटर और प्लांट्स पे बेस है। So there are several ways to conserve this precious resource, such as creating awareness among general public about importance of wildlife. So basically हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले अवेयरनेस करनी चाहिए जनरल पब्लिक में दैट हाउ मच इम्पोर्टेंस, क्या वाइल्ड लाइफ की इम्पोर्टेंस है। एनेबलिंग कम्युनिटीज़ इन कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ बाई प्रोवाइडिंग देम ट्रेनिंग एंड स्किल्स। क्या करना चाहिए हमें उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कैसे कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ होती है। सो नाउ द चैप्टर वॉज एंडेड।